विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस फॉर इवेंट टॉपिक्स। आज का ये सुबह कल समय में सभी को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस के अंदर इवेंट्स टॉपिक का क्लास के अंदर मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूं सभी लोगों सुरक्षा में हैं। आई एम थैंकफुल टू माय ऑल द DGT staff and IT cells to provide this type of environment to conduct these virtual classes, online classes, as well as I am also thankful to my NIMI staff members and technical staff members who are giving the technical support to success these classes. I am also thankful to my NSTA Noida HOD Swati Sethi madam and Principal Sashi Madhur madam and all my staff members. Thankful to teachers and staff who are providing their supports to join their students to make this success of these classes. My special thanks to all my COPA and CSA trainees who are joining today virtual class. Friends, this is my email ID and mobile number. Today this class is delivering from National Skill Training Institute for Women Noida through NIMI Zoom app. Friends, in last class means from this entire last this week we are discussing about the various types of properties, methods, means range properties and methods, worksheet properties and methods, workbook properties and methods. So properties nothing but characteristics. Methods can do an action, an operation. So I don't repeat all the things, but I am giving the recap. Means connection. I am providing the connectivity between the previous class and today class. Yesterday class, we are also seeing some of the worksheet properties and worksheet methods. Suppose if you want to count worksheets, suppose if you want to know the worksheet name, or if you want to rename a worksheet name in worksheet methods, also you want to add a sheet, delete a sheet, like were fulfilled all some of the worksheet properties and methods. पिछले क्लास यानी कल का क्लास में हमने वर्कशीट एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर वर्कशीट प्रॉपर्टीज एंड वर्कशीट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। सो वर्कशीट प्रॉपर्टीज का सहायता से हम वर्कशीट को गिनती करने के लिए कॉलम्स को रोज को भी, फिर एक वर्कशीट नाम चेंज करने के लिए या नेम डिस्प्ले करने के लिए, फिर साथ साथ एक वर्कशीट को डिलीट करने के लिए। मींस वो प्रॉपर्टीज के अंदर देखा। वर्कशीट मेथड्स में हमने एक वर्कशीट को कैसे ऐड कर सकते हैं, एक वर्कशीट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इत्यादि चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज के क्लास में हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम इज देयर, सम ऑफ द वर्कशीट प्रॉपर्टीज means in last class we are not covered. One or two things I want to recap that things also. That is depending upon our time. समय के अनुसार समय बच गए तो वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहता हूँ वर्कशीट के अंदर एक दो प्रॉपर्टीज थ्रू प्रैक्टिकली। So an event in first of all, very beginning, at the time of giving the introduction to this VBA, I was clearly given the concept, basic language, Visual Basic, VB.NET, then after that Visual Basic for applications. Visual Basic is one of the event-driven program. So VBA is also fulfill all these characteristics of the Visual Basic. Visual Basic एक event-driven program है। दुनिया में क्या होता थे, कंपनी, फैक्ट्री, कार्यालय के अंदर यूजर कन्वीनियंट पर्पस, एंड यूजर, they are making some apps, applications according to the need of the company or factory, industry, office. Then that software was installed in that particular company, and company and users can use that particular software which is developed in the Visual Basic. In backend they can store the data in the form of DBMS, database management systems, Oracle, MS Excel, MySQL, whatever.
मेरे कहने का मतलब ये VBS आरंभ में मैंने क्लियरली समझाया एज ए टीचर। सिंपल साधारण बेसिक लैंग्वेज का मतलब क्या है, फिर विजुअल बेसिक, फर्दर बाद में जो परिचय किया, फिर विजुअल बेसिक VB.NET के बारे में समझाया मैंने। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हर कंपनी के अंदर हर ऑपरेटर मीन्स आम ऑपरेटर मीन्स जिसका पास जो MTech BTech और BCA MCA नहीं है कंप्यूटर नॉलेज, उन लोगों भी अपना लेवल के अनुसार जरूरत के अनुसार छोटे मोटे ऐप को डेवलप करने के लिए ये VBA कॉन्सेप्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑफिस के अंदर इनबिल्ट किया गया है। तो विजुअल बेसिक के अंदर जो भी फीचर्स से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे मैक्सिमम VBA के अंदर फुलफिल होता रहता है। तो मतलब तो VBA में क्या होता था, दे कैन डिजाइन इन मींस ब्यूटीफुल फॉर्म्स मींस एक सुंदर फॉर्म्स को डिजाइन करके फिर ऑपरेटर एंड यूजर वाले के लिए सेव करने के लिए सेव बटन मतलब क्लिक करने की वजह से सेव होता था, प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन प्रोवाइड करते थे, ऑपरेटर प्रिंट बटन पर क्लिक करने की वजह से स्क्रीन पर जो भी डाटा प्रिंटर का सहायता से प्रिंट कर सकते थे, चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, डाटा अपलोड करना है इत्यादि सारे इवेंट्स के लिए दीज आर कॉल्ड एज इवेंट्स। इवेंट इज नथिंग बट कैन फुलफिल ए टास्क। तो उनके लिए एक बटन्स का रूप में कोडिंग लिखते थे, बैक एंड में कोडिंग, प्रोग्रामर कैन डेवलप द कोडिंग, बट फ्रंट एंड मींस सामने एंड यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर कैन ऑपरेट दैट एंटायर ऐप। मतलब उस ऐप को क्या करते थे एंड यूजर ऑपरेटर मींस डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस में जो भी काम करने वाला है कंपनी फैक्ट्री में, तो उन लोगों क्या करते थे एंड यूजर लेवल में सिर्फ डाटा एंट्री करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, प्रिंट करना है, चेंजेस करना है। ये तो कॉलेज है तो टीचर ने मार्क्स दिया तो मार्क्स को अपडेट करके फिर रिपोर्ट जनरेट करना है, फेल स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालना है, अटेंडेंस शॉर्टेज है तो अटेंडेंस शॉर्टेज स्टूडेंट्स को लिस्ट, फीस जमा नहीं किए तो नॉन फी पेमेंट, उस बटन पर क्लिक कर ऑप्शंस में जाते थे तो रिपोर्ट्स में तो उस टाइप ऑफ रिपोर्ट मतलब क्या कौन सी रिपोर्ट चाहिए उसको, अदरवाइज अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस शॉर्टेज वाले चाहिए, फीस जमा नहीं किया उनका चाहिए, ये तो रेगुलर ऑप्शंस, ये तो कुछ चेंजेस, इस तरह सब काम के लिए वह इवेंट्स देखकर प्रोवाइड सम मेनू ड्रिवन ऑप्शंस। सो थ्रू दैट ऑप्शंस यूजर or data entry operator just simply select according to the number or by click on that particular option। मतलब क्या करते थे ऑपरेटर, सपोज एक मेनू दिया है, मेनू के अंदर ऑप्शन 1 ओपन सपोज एडमिन फॉर्म, सो 1 टाइप करते हैं एंट्री और चॉइस 1, सो एडमिन फॉर्म खोलेगा। अटेंडेंस सेकंड ऑप्शन मान लीजिए, सो एंट्री और चॉइस 2 सेलेक्ट करने के बाद अटेंडेंस में फिर जाते थे, अटेंडेंस में मंथ वाइज अटेंडेंस अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, नहीं तो प्रिंट करने के लिए, अटेंडेंस के अंदर और कुछ ऑप्शंस है। So that is the main advantage of the Visual Basic. So they can implement all these things through this particular events concept. They are writing some coding to implement particular task. In the same way here in VBA, an event means an event in Excel VBA is a reason or trigger for an action to take place. ट्रिगरिंग मींस सपोज एक बटन पर अपने क्लिक करते रहते, सिंगल क्लिक डबल क्लिक, या तो सपोज एक्सेल सीट को एक ओपन करते समय पर, क्लोज करते समय पर, या तो एक एक्सेल सीट पर एक सेल से दूसरी सेल पर जाते समय पर चेंजेस किया मान लीजिए, या तो अपने स्टूडेंट का स्कोरिंग 60 से ज्यादा आएगा तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्लास, या तो कंपनी का फैक्ट्री का गोल मींस कितना परसेंटेज आना चाहिए इस महीने के अंदर, एक सेल्समैन का मान लीजिए, तो गोल अचीव्ड, उस मतलब उस पर्टिकुलर रीजन मींस ट्रिगरिंग कोडिंग एक्शन में लेके फिर फुलफिल करते रहते, जब तक मतलब आप एक बटन ये तक इवेंट को कॉल नहीं करते तब तक वो इवेंट के एक्शन नहीं देख सकते। लाइक ए प्रोसीजर को जब कॉल करेंगे तब तो प्रोसीजर एग्जीक्यूशन होगा। The action to be taken when the event occurs is written as a code in the event procedure। एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जैसे स्टूडेंट फॉर्म वी आर ऑलरेडी ऑब्जर्व, सेव और एडिट, फाइंड, ओके, डिलीट, so these are the events। Suppose whenever the user is clicked on that particular button, then what happened in backend we are written some coding instructions, those instructions will be executed, so due to that reason that particular event will be fulfilled।
तो उनको क्या करते थे हम, एक प्रोसीजर के अंदर लिखा हमने, प्राइवेट सब लिखते हैं हम और डायरेक्टली सब है। सो प्राइवेट सब भी एक प्रोसीजर है, लेकिन वो डायरेक्ट एक बटन के अंदर लिखा हमने, एक कंट्रोल फॉर्म के अंदर लिखा है प्राइवेट सब कॉम्बो बॉक्स 1 चेक बॉक्स 1। अगर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑब्जेक्ट को ऊपर डबल क्लिक करके फिर कोडिंग विंडो के अंदर प्रवेश करते समय पर हम ये देख सकते हैं प्राइवेट आगे सब फॉर्म कंट्रोल नेम, यूजर खुद ही लिख सकते हैं सब स्पेस सब प्रोसीजर नेम। So that means the procedure coding will be implemented. Example, suppose देखिए click double click an event of the button or scroll and change event of the scroll bar. हम क्या करते थे, स्क्रॉल बार को चेंज करते थे, फिर वैल्यूज चेंज होते रहते थे। स्क्रॉल बार के लिए मैंने कोडिंग लिखा है नंबर इसका स्क्वायर। आप लोगों को मैंने ये कहने के लिए कहा टेम्परेचर कन्वर्जन सेल्सियस टू फारेनहीट, ठीक है। जैसे नंबर एक्चुअल नंबर को नंबर में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया, स्क्वायर को नंबर को 2 गुना करके मल्टीप्लाई करके स्क्वायर डिस्प्ले करते थे। तो स्क्रॉल बार को हम क्या करते थे, बार मूव करने की वजह से वो इवेंट फुलफिल होता था, बटन पर डबल क्लिक करने की वजह से उस बटन के अंदर जो भी एक्शन फुलफिल करते थे। तो दीज आर द इवेंट्स। An event-driven program can be triggered when you change a cell or range of cells values manually. So वो बटन के लिए वो चीज है, एक्सेल के अंदर सपोज एक्सेल VBA के अंदर internally there are 2 types of events are there, worksheet events and workbook events. तो इन वर्कशीट इवेंट के अंदर सपोज हमने सेल्स का रेंज सेलेक्टेड रेंज एड्रेस को चेंज किया, तो तब एक टास्क फुलफिल करने के लिए एक सेल पर एक वैल्यू के अनुसार कुछ सपोज रिजल्ट आप डिस्प्ले करना है, तो दीज आर वर्कशीट इवेंट्स। वर्कबुक को क्लोज करते समय पर एक वर्कशीट को, वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट को हमने ऐड किया है मान लीजिए, तब आपको यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम ये वर्कशीट इवेंट का सहायता से कर सकते हैं। तो फॉर्म पर डबल क्लिक करते समय पर मैंने आप लोगों को समझाया है, यू प्लीज लुक एट ऑन द राइट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, इवेंट्स टैब इज देयर। इन दैट इवेंट सपोज फॉर्म यूजर फॉर्म अंडरस्कोर क्लिक आते थे, फिर उस इवेंट में क्लिक इवेंट पर क्लिक करते समय पर इनिशियलाइजेशन फॉर्म इनिशियलाइजेशन। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म इवेंट्स आर देयर। द सेम वे बटन के लिए भी हर फॉर्म कंट्रोल्स के लिए अलग अलग इवेंट्स, इसी तरह वर्कशीट इवेंट्स भी है, वर्कबुक इवेंट्स भी है। ओके, then worksheet events are triggered when there is a change in the worksheet. एक वर्कशीट के अंदर कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट होते समय पर सेलेक्टेड रेंज को सेलेक्ट किया हमने, रो को डिलीट किया, कोई भी चीज है, तो उस टाइम कुछ एक्शन मतलब परफॉर्म करना चाहता हूं, तो उसको कहते हैं हम वर्कशीट इवेंट्स। इट इज क्रिएटेड बाय द परफॉर्मिंग ए राइट क्लिक ऑन द शीट टैब and choosing the view code and a letter pasting the code. शीट पर राइट क्लिक करके सपोज को कोडिंग विंडो के अंदर जाके फिर कुछ लिखने की वजह से वर्कशीट इवेंट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। The user can select each one of those worksheets and choose worksheet from the drop down list. मतलब उस लिस्ट में से वर्कशीट को सेलेक्ट करने की वजह से वर्कशीट इवेंट्स को हम राइट साइड देख सकते हैं इवेंट विंडो में। भी दिखाते हैं कैसे देखना। जब भी आप सपोज एक्सेल ओपन करने के बाद डेवलपर पर जाते हैं, क्योंकि VBA के अंदर काम करना है, तो डेवलपर पर क्लिक करना है। All we all know very well about, if you want to do some coding or some work in the VBA, you must and should click on the developer tab. Then after that, Visual Basic or Insert, macros, whatever. See here in this, after clicking on the Visual Basic, this one is called as a standard toolbar. VBA के अंदर standard toolbar से एक्सेल सीट पर जाने के लिए, रन करने के लिए, डिजाइन व्यू के लिए, डीबगिंग को रीसेट करने के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज विंडोज, रिजोल्यूशन विंडो है, तो प्रोजेक्ट ये है प्रोजेक्ट विंडो खोलने के लिए। सो टूल्स, दिस वन, दिस इज द स्टैंडर्ड टूल। So here, whenever you click on Visual Basic first option, then it will display like this. Visual Basic project, suppose workbook 1, Microsoft Excel objects. From the beginning, suppose if you are discussing about the objects, na, we may be confused.
शुरू में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया तो कंफ्यूज होने के लिए चांसेस, इसलिए अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम क्लियरली डिस्कस किया। तो फिर एक्सेल वर्कबुक के अंदर सपोज ये बता रहे, देखिए एक वर्कशीट, मेरा वर्कबुक के अंदर वर्कशीट एक ही है। अगर मान लो बाय डिफॉल्ट 3 आता है, शीट 1 शीट 2 शीट 3, ब्रैकेट के अंदर शीट 1 शीट 2 शीट 3 लॉजिकल नेम्स है। तो दिस वर्कबुक करंटली वर्किंग वर्कबुक को दिस वर्कबुक से रिप्रेजेंट करते हैं हम। वर्कबुक मेथड्स का, वर्कबुक इवेंट्स का बारे में हमने देखा है। दिस वर्कबुक इज यूज्ड फॉर currently or presently working workbook. This workbook will represent the presently working workbook. Okay, so our main aim means you try to understand the concept. First of all, whenever you click on the developer, then Visual Basic, it will display like this. So if you want to implement the workbook or worksheet इवेंट्स को इंप्लीमेंट करना है तो वर्कशीट पर डबल क्लिक करना है, कोडिंग विंडो पर चले जाएंगे। इस वर्कबुक पर क्लिक करने के बाद से वर्कबुक इवेंट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम। कई बार जनरली खोल देते हैं। सपोज देखिए अगर हमने क्लिक किया शीट 1 पर, या तो कई बार जनरल डिक्लेरेशंस, बट व्हाट आई एम टेलिंग हियर, इफ यू वांट टू सी द वर्कशीट इवेंट्स, देन यू कैन क्लिक हियर एंड सेलेक्ट द वर्कशीट ऑप्शन. This is the general. So why it is displayed the general? User can also develop his own events means through procedures. प्रोसीजर द्वारा हम अपना इंडिविजुअल जरूरत मतलब इवेंट्स को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैक्रोस कहते हैं। और सब लिख के सम एक्स वाई जेड समथिंग, तो उसके अंदर कोडिंग लिखते हैं हम, तो उस कर्सर इस बीच में रख के रन कर रहे हैं हम। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द इवेंट. So this is called a general events, user defined events. But if you want to see the worksheet events, workbook events, then you can select here. Your click comes here through the after clicking the worksheet. मतलब क्या, अगर आप सपोज डेवलपर पर क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक पर क्लिक किया है तब इस टाइम ऐसे दिखाई देगा। फिर कोडिंग लिखने के लिए सब करते हैं हम, शीट 1 पर शीट 2 पर शीट 3 पर डबल क्लिक करते हैं हम, इस तरह देख लेते हैं। बहुत सारे कोडिंग्स लिखा हमने। इन द एंडिंग स्टेज, दिस इज द लास्ट बट वन क्लास। ये यूबीपी के लिए लास्ट बट वन मींस आज एक क्लास कल लास्ट क्लास। इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ, हमने करके देखा है, सब लिखते थे स्पेस एक्स वाई जेड वगैरह जो भी लिखते थे उसी वो भी है एक यूजर डिफाइंड यूजर डेवलप्ड इवेंट्स। सब लिख के आगे लिखते हैं। प्रोसीजर डेफिनेशन में इवेंट्स डेफिनेशन में लिखा है प्रोसीजर को कॉल करने के बाद तो उस करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करता है एक इवेंट। अब वर्कबुक वर्कशीट पर डबल क्लिक करके हमें आया है इधर। सो इफ यू वांट टू सी द डिफॉल्ट वर्कशीट इवेंट्स, देन यू कैन क्लिक हियर एंड सेलेक्ट द वर्कशीट। देन आफ्टर दैट राइट साइड विंडो, दिस वन आल्सो change declarations, selection change automatically displayed. Then you can click here number of or list of worksheet events वो देख सकते हैं। देखिए अभी मैंने क्या किया, उस जनरल टैब पर क्लिक किया है, फिर जनरल एंड वर्कशीट। So why it is shown the worksheet? We are achieved here through means after double clicking the worksheet. हमने इस स्क्रीन इस विंडो तक कैसे है, हमने वर्कशीट पर डबल क्लिक करके आया। मैं वर्कशीट पर डबल क्लिक करते समय पर ये कोडिंग विंडो खुल गया है, लेकिन ये जनरल इवेंट यूजर कम्युनिटी के लिए यूजर कैन डेवलप यूजर ओन टास्क रिलेटेड इवेंट्स। सो सब स्पेस पर्टिकुलर नेम कोडिंग लिखने के वजह से उस इवेंट को हम इंप्लीमेंट कर सकता था। लेकिन डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तरफ से, तो ऑफिस ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर तरफ से वर्कशीट एंड वर्कबुक इवेंट्स और देयर। सो वर्कबुक्स एंड वर्कशीट इवेंट्स को देखने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर वर्कशीट का इवेंट्स को देखने के लिए वर्कशीट पर डबल क्लिक करके कोडिंग विंडो में आया हम लोगों। फिर इस जनरल पर क्लिक करने के वजह से वर्कशीट को हम पहचान सकते हैं। तो वर्कशीट पर क्लिक करिए। सो वर्कशीट पर क्लिक करने के वजह से वर्कशीट ऊपर सिलेक्शन में आ जाएगा, सिलेक्शन चेंज, ठीक है, प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन। So that is the main difference between the user defined event and system, whether it is worksheet or workbook or form controls events. Then
that time you must and should private word. अगर सिस्टम रिलेटेड इवेंट्स है तो डबल क्लिक करके फिर कोडिंग विंडो के अंदर जाते समय पर ये प्राइवेट शब्द को हम पहचान सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं SUB मीन्स ये सब स्पेस XYZ, प्राइवेट आ गया तो उसका मतलब क्या, एक इवेंट मीन्स हो सकता है वर्कशीट का होगा, वर्कबुक का होगा और फॉर्म का है, फॉर्म कंट्रोल्स का, लाइक दैट। ओके, सो दैट मीन्स नाउ वी आर selected worksheet option to implement the worksheet events। worksheet events को implement करने के लिए हमने इधर क्लिक करके फिर worksheet को select किया है, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन चेंज आ गया है। सो कर्सर इधर ब्लिंक करेगा, बाकी देखने के लिए फिर इधर क्लिक कर सकते हैं। हमने देखा है फॉर्म में लिखते समय पर, देखिए इधर क्लिक करते समय पर इतना सारे इवेंट्स है। किसका इवेंट्स है ये, वर्कशीट का इवेंट्स। लास्ट क्लास मेथड्स के बारे में डिस्कस करते समय पर मैंने क्या समझा, वर्कशीट्स ये तो वर्कबुक्स डॉट लिखने के समय पर जो भी ऑप्शंस आता है वो वर्कबुक का है, तो वर्कबुक, वर्कशीट है तो वर्कशीट का मेथड्स और प्रॉपर्टीज। यानी इस विंडो रेजोल्यूशन, प्रोजेक्ट रेजोल्यूशन विंडो पर क्लिक करते समय पर ऑल द इवेंट्स एंड मेथड्स प्रॉपर्टीज लिस्ट देख लेते हैं हम। इसमें वर्कशीट सेलेक्ट किए तो वर्कशीट का रिलेटेड प्रॉपर्टीज एंड वर्क मेथड्स राइट साइड शो कर देते। तो इसी तरह मैं वर्कशीट को सेलेक्ट किया है, वर्कशीट इवेंट लिस्ट को डिस्प्ले किया है। सिलेक्शन चेंज बाय डिफॉल्ट, एक्टिवेट, बिफोर डिलीट, बिफोर डबल क्लिक, बिफोर राइट क्लिक, कैलकुलेट, डीएक्टिवेट शीट, all these are belongs to worksheet events. And second one is a workbook event. Workbook events are triggered when there is a change in the workbook on the whole. Means entire workbook के अंदर कुछ changes हुआ है तो तब अगर एक कुछ एक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, वो चेंजेस का हो सकते हैं वर्कबुक शीट 1 को अंदर हो भी हो सकता है, शीट 2 में भी, शीट 3 में भी, but all these are belongs to the entire workbook. So that time you are using workbook events. For easily understanding purpose, you can try to understand the state government and central government. Central government employees can transfer anywhere in the India. State government employees may be transferred within that state only. Especially suppose teaching staff, primary schools or high schools, primary school teacher may be transferred within the district only. एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है, कभी कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता रहता है, लेकिन उस जिला के अंदर तहसील में है वो ट्रांसफर करता रहता है। रेयर केसेस, इफ एनी पर्सन इज डूइंग सम मिसबिहेविंग, इफ ए पनिशेबल, देन ओनली दे कैन ट्रांसफर इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स। और एक तहसील के अंदर भी, मंडल में भी बहुत सारे गांव होता रहता है, तो ये 2 साल एक गांव में, फिर बाकी दूसरे गांव में ट्रांसफर करते हैं, तो तीसरे गांव में ट्रांसफर करते हैं, या तो उसी मंडल के अंदर जो गांव है, मतलब विलेजेस है, उसी के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर टीचर में भी आसान से, मतलब स्कूल से अपना घर तक पहुंच के फिर घर से स्कूल तक दिन में यात्रा करने के लिए वो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ही ट्रांसफर करता रहता है। That is called as a state government employees. Central government, suppose banks, railways, like NSTI, so many central government departments are there. You know very well about that one. So those employees can transfer all over in India. In the same way, in workbook, if an event you are implemented, one of the workbook event that will be activated means perform the task when the event are triggered when there is a change in the workbook on the whole, means entire workbook अंदर इससे भी कुछ changes आ गया, तो तब उस समय पर इस events को, एक event को implement करना चाहते हैं, तो तब ये workbook event अंदर लिखना पड़ेगा। You can add the code for workbook events by selecting the workbook, इस workbook। अभी हमने दिखाया ना फर्स्ट स्क्रीन में, वर्कशीट पर क्लिक किया तो फिर वर्कशीट के अंदर कोडिंग में जाते थे। अब वर्कबुक इवेंट्स को देखने के लिए तो वर्कबुक की कोडिंग लिखना है, तो फिर इस वर्कबुक पर डबल क्लिक करने की वजह से वर्कबुक इवेंट्स को हम देख सकते हैं।
देखिए, so immediately workbook open, sub procedure will be displayed on the user as on the screenshot. इस वर्कबुक पर हमने डबल क्लिक किया, फिर इस तरह वो भी जनरल, फिर जनरल में से क्लिक करके वर्कबुक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वर्कबुक को सेलेक्ट किया तो फिर इस तरह ओपन इवेंट डायरेक्टली देख सकते हो। फिर अगेन राइट साइड जाने के बाद बहुत सारे इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स में से आप एक एक मतलब आपका टास्क बिफोर प्रिंटिंग, एक मतलब प्रिंट करते समय पर कुछ मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो बिफोर सेविंग यू आर सेव्ड सक्सेसफुली, नहीं तो आफ्टर सेविंग, नहीं बिफोर क्लोज एक फाइल को क्लोज करने से पहले, आफ्टर सेविंग सेव किया आपने, सेव कमांड इंप्लीमेंट होने के बाद एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो आप, उन बातों को आप आफ्टर सेविंग इवेंट के अंदर लिख सकते हो। whenever you open the workbook then it will display message open means वर्कबुक ओपन के इवेंट के अंदर अगर लिखने की वजह से हम फिर जब भी आप एक वर्कबुक ओपन करते रहे तो तब तो उन चीजों को हम देख सकते हैं, अभी सिस्टम पर देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड, is a very easiest manner, but as a student we must and should know simply what is the event, types of events, maybe events, worksheet events and workbook events and user defined events. जो कोडिंग हम लिखते हैं सब प्रोसेसर से, those are called as macros and user defined workbooks. Now we are doing some experiments in means practical in MS Excel. एक्सेल के अंदर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे वर्कबुक 1. Okay, now I want to share my screen. Okay, dear friends, this is my MS Excel workbook book 1. Just I open new one. अभी मैंने एक नया वर्कबुक को ओपन किया है। प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ रहेगा प्रैक्टिकल थिंग्स, जस्ट आई वाज given the announcement now. Maybe if time is there then we can implement, no problem. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अभी font will increase the font size. Okay, the developer Visual Basic, like just I see in the screen. जब भी आप डेवलपर पर जाते हो विजुअल बेसिक पर क्लिक करते हो तब पहली बार स्क्रीन वैसे दिखाई देगा। यही तो मैंने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का साथ देखा है आप लोगों को क्लियरली समझवाने के लिए। देन आफ्टर दैट डबल क्लिक ऑन द शीट 1 फ्रॉम द बिगिनिंग। इतना तक मैं बताता शुरू में, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीजर्स, फंक्शंस, बहुत सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट किया है। इफ एल्स इफ, लैडर इफ, नेस्टेड इफ, सेलेक्ट, लूप्स, दैट टाइम इसका अंदर डायरेक्ट सब लिख देते, सब XYZ एंटर, सो बीच में कोडिंग लिख देते। तो ये सब प्रोसीजर, इट इज आल्सो नथिंग बट वन ऑफ द इवेंट, यूजर डेवलप इवेंट, मतलब हम खुद डेवलप कर रहे हैं एक टास्क के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज वन ऑफ द इवेंट। बटन का द्वारा लिखते थे हम, सो बटन पर क्लिक करने की वजह से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तो बटन के लिए वो एक क्लिक की इवेंट है वो, ठीक है। तो शीट 1 पर डबल क्लिक करके फिर जो भी हम कोडिंग लिखते हैं तो डाटा को शीट 1 पर लेकर जाते थे या तो डायरेक्ट मैसेज बॉक्स का सहायता से प्रिंट करते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीज यूजर डेवलप्ड इवेंट्स। अब हमारा मुद्दा क्या आज का क्लास के अनुसार जनरल पर, फिर मैंने कहा तो शीट 2 पर, ऑलरेडी शीट 1 को मैंने काम में लिया ना, शीट 2। अब देखिए जेंडर डिक्लेरेशंस, अब इसमें जाने के लिए कहा मैंने शीट वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, ये इवेंट है वर्कशीट के इवेंट। अब वर्कशीट के अंदर रिमाइनिंग इवेंट्स को देखने के लिए मैंने आपसे कहा इस पर क्लिक कीजिए, ये है। सो दीज आर द सम ऑफ द वर्कशीट 2007 और 2010 16, तो दैट थिंक सम मोर इवेंट्स वी कैन ऑब्जर्व। एक्टिवेट, एक शीट को एक्टिवेट करते समय पर, ओके, सो ये मैसेज देख सकते हैं हम। और
बिफोर डबल क्लिक, बिफोर राइट क्लिक, चेंज ऑप्शन, सेलेक्ट चेंज। अगर एक सपोज हमने क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल का एड्रेस सपोज अंदर डाटा को हमने चेंज करते समय पर एक टास्क को फुलफिल करना है, तो उस समय उसके लिए भी एक कोडिंग लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर सेल के अंदर डाटा को टारगेट करके सपोज कुछ वैल्यू आ गया है तो उसका अचीव है ये बात लिखने के लिए। चलिए तो हम लिखते हैं, चेंज के लिए लिखते हैं चेंज। ओके, अब देखिए लंबा चौड़ा कोडिंग लिखने में से समझ नहीं सकते हम, so there is no need to develop bulk means heavy coding for understanding purpose. First of all, as a trainee or as a student or as a learner, we can try to understand the fundamentals means basic principles सीखना जरूरी है। प्राइवेट सर अब ये देखिए वर्कशीट अंडरस्कोर चेंज, सो वर्कशीट इवेंट है ये चेंज इवेंट। ओके, नाउ एक्सेल शीट पर जाके शीट 2 पर जाके हम चेंज करेंगे डाटा। अभी लिख रहे हैं हम, सपोज हम एज्यूम करके जाएंगे एक पर्टिकुलर शीट B2 पर कुछ डाटा है, वैल्यू है, तो उसको सपोज 80 से ऊपर आ गया तो गोल कंप्लीट है। ठीक है, तो उसके लिए लिख रहे हैं इफ टारगेट एड्रेस, टारगेट एड्रेस को हम फिक्स कर सकते हैं कैसे, इज इक्वल टू का बाद हमेशा के लिए फिक्स कर लेना तो डॉलर सिंबल का सहायता से एब्सोल्यूट नहीं क्लास फ्रेंड्स सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हमें क्या आपको पता है एज ए टीचर मैंने ये बताया, एज ए टीचर आई वाज एक्सप्लेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस आर देयर, सेल रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस। तो एक पर्टिकुलर सेल को हमने टारगेट करने के लिए डॉलर सिंबल के साथ सेल को मींस टारगेट करेंगे, असाइन करेंगे। सपोज B2 पर या तो B10 पर कहीं भी देखिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, so $2 means this is the our target cell address। 10 अगर ये टारगेट है तो फिर इसका अंदर चेकिंग कर रहे हैं हम, टारगेट डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 60 के लिए फर्स्ट डिवीजन, सपोज हायर चाहिए आपको 80, देन एक मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे सही। एंड इफ एल्स का साथ लिख से यू आर नॉट अचीव्ड गोल, चल चेंज करेंगे। अब सपोज उसके लिए ऊपर वाले के लिए एक don't make friends please don't confuse, this one is if target address dot is equal to $p, $2 means B2 एब्सोल्यूट रेफरेंस, B2 को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर वो टारगेट है तो और एक अंदर नीचे कंडीशन चेक करना है, अगर उस टारगेट सेल का अंदर B2 का अंदर वैल्यू 80 से ज्यादा है तो गोल इज कंप्लीटेड, ये डिस्प्ले करने के लिए। अभी तो हमने लिखा इधर, ठीक है। अब B2 पर शीट 2 पर जाएंगे, B2 this one, you are entered suppose 90 some 85 90, goal is completed। okay, suppose if you are changed here some value you can enter, don't bother, बाकी जगह पर आप वैल्यू टाइप करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अंदर अगर मान लीजिए 80 टाइप किया है 80 तो कुछ फर्क नहीं किया, ग्रेटर देन 80 लिखा वो नहीं आया मैसेज, 81 गोल इज कंप्लीटेड। इफ कंडीशन के बारे में डीपली डिस्कस किया हमने, ठीक है सर 80 से कम है तो कुछ और लिखना चाहते ना तो आप लिख सकते हो, फिर उसके लिए क्या विजुअल बेसिक कोडिंग में जाइए। एल्स अगर मान लीजिए 80 से कम है तो एल्स लिख सकते हैं, टारगेट नॉट अचीव्ड, गोल नॉट अचीव्ड, गोल नॉट कंप्लीट।
अब देखते हैं, सपोज बाकी जगह पर मैं टाइप करते समय पर if I am enter the data in other than the B2 cells, there is no result. When I enter the data into B2 cell, then immediately it will display message. Suppose 50. Goal is not complete. First time it is not shown. अगर 80 से कम है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता था, लेकिन else person के अंदर हमने इंक्लूड किया है 80 से कम है तो फिर ये मैसेज डिस्प्ले करना है. So goal is not completed. चेंज करेंगे बस. अब ओके, देन आफ्टर दैट सपोज इसमें 95 गोल इज कंप्लीट. कोडिंग विंडो सेंटेंस गलत है, इज नॉट. सपोज हमारा डाटा कई और जगह पर लिखते हैं हम, कोई भी एक सेल डाटा लिख के रखा है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन बताना है, ठीक है. सो परसेंटेज लिखा है इसमें ऑलरेडी, वी आर एज्यूमिंग परसेंटेज. बाद में तो आई 2 से शुरू करेंगे, मैं 1 से शुरू करना चाहता हूँ, 2 से शुरू करेंगे. परसेंटेज एंट्री किया हमने 60, 50 और 40, लाइक 80, 75, 54, 30. फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन बताना है, तब पास मान के चलते हैं. 37. If you're not able to see, I can increase. आप लोगों अगर स्क्रीन को देख नहीं पा रहे तो फॉन्ट साइज में इंक्रीज करना चाहिए. Now friends, please, you want to implement some select. Suppose first by default it can display na selection change. This one selection change cursor is there. एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे हम dim I as integer और टाइम इज वेरी कम लेटरल है, हमें कम होने के वजह से dim I as integer. Then after that for I is equal to 1 में ऑलरेडी है 2 2 सम 5 10. कहाँ तक एंट्री किया हमने डाटा, 10 तक करें तो 10 ले लेंगे, चेंज करेंगे उसमें डाटा एंट्री करेंगे 2 to 10. टारगेट एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा. जैसे उसमें टारगेट एड्रेस हमने फिक्स किया है, फिर इधर भी एक टारगेट एड्रेस को हम पहले असाइन कर रहे हैं हम ऊपर, जैसे सिलेक्शन में करते थे. सिलेक्शन रेंज के लिए कोडिंग लिखा, आप लोगों को याद होगा. तो मेरा डाटा डी में है, सो फर्स्ट फिक्स करने के लिए $D कोलन, देन आफ्टर दैट $, लेकिन रो तो चेंज है, सो रो चेंज करने के लिए एंड ऑपरेटर का सहायता से रो नंबर बता सकते हैं. रो इज आई. ओके, देखते हैं इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा. ये है टारगेट एड्रेस. टारगेट एड्रेस मींस प्लीज D2 पर 60 है, D3 पर 50, लाइक दैट. अगर हम चेंजेस किया तो क्या होगा, देन आफ्टर दैट वेरिएबल डिक्लेरेशन एड्रेस डिफाइन किया है, लूप चला रहे हैं हम फॉर i इज इक्वल टू 2 to 10. देन इफ कंडीशन चेक करेंगे,
टारगेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, देन इसका बाद देन तो लिखना है मैसेज बॉक्स फर्स्ट डिवीजन क्लोजिंग एल्स, तो फर्स्ट में हो गया तो फिर बाहर आ जाता है एल्स इफ अगेन इसको कॉपी कर देंगे, बार बार टाइप करने में भी समय कम है। टारगेट वैल्यू सेकंड डिवीजन के लिए 45, देन सेकंड क्लास डिस्प्ले करेंगे सेकंड डिवीजन एल्स, और कंडीशन तो है नहीं, थर्ड डिवीजन डिस्प्ले कर देते। फर्स्ट वन some people's asking na, ऑफर का विदाउट नेक्स्ट नहीं लिखा है, NEXT नेक्स्ट आई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट कोडिंग में डिस्प्ले करना चाहता हूँ आपका जो चेंजेस के लिए लिखा है एक पर्टिकुलर सेल का अंदर डाटा, ये आ गया है ये वाली, तो आप कह सकते हैं मेक इट स्क्रीनशॉट और फोटो वाट चेंज डेवलपर विजुअल बेसिक शीट चेंज के लिए लिखा हमने वर्कशीट चेंज का है ये कोडिंग। पर्टिकुलर एड्रेस को चेंज होते समय पर रिजल्ट डिस्प्ले करते थे गोल इज कंप्लीटेड नॉट कंप्लीटेड। अभी हम सेल एड्रेस चेंज करते समय पर क्या हुआ, इधर जो फर्स्ट मीन्स 60 से ज्यादा है, देखिए 7 मीन्स 50, तो क्या हुआ सेकेंड डिवीजन 37 के लिए क्लिक करते हैं हम। क्या किया हमने, वर्कशीट सिलेक्शन चेंज का अंदर कोडिंग लिखा है, तो वर्कशीट सिलेक्शन चेंज इज द वन ऑफ द इवेंट वर्कशीट इवेंट, तो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हमने कोडिंग लिखा है। सो जब भी हम एक पर्टिकुलर सेल का चेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल के लिए चेंज क्लोज करके मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए वर्कशीट चेंज में क्या सिंगल एक सेल को टारगेट किया हमने, B2 का अंदर वैल्यू के हिसाब से कोडिंग इंप्लीमेंट किया है। इसमें क्या अगर आप उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मीन्स D2 से D10 तक इस एरिया में इस रेंज में कभी भी अगर आप क्लिक कर दो तो इसका बैक एंड में हमने एक वर्कशीट इवेंट लिखा है, उस एड्रेस का हिसाब से फॉर लूप चलाया हमने 2 से लेकर 10 तक। सो ऑटोमेटिकली कॉलम $D लिखने की वजह से D कॉलम को इन्होंने फिक्स किया है, बाहर लेकर आता हूं।
Okay, dear friends. Okay. ये है हमारा कोडिंग। Home, then please you can make it sheet selection change। इसमें डाटा डालना नहीं है, कुछ भी नहीं। B2 पर गया, अब मैं कुछ डाटा एंट्री करता हूँ। 40 अंदर तो लिखा हमने, ठीक है क्या वो? हाँ, इसके ना डिबगिंग में चल रहा है, इसको क्लोज करना है। एक्सेल शीट पर जाएंगे। देखिए पहले नहीं आता क्योंकि बैकएंड में डिबगिंग में कोडिंग एग्जीक्यूशन चल रहा है, एरर मैसेज था। अब मैं क्लोज कर देता हूँ। उसी के लिए, उस रेंज के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। ये इस एरिया के अंदर जो हमने लिखा है पर्टिकुलर ये रेंज है ना, सपोज फिर इसमें आ गया, कोई बात नहीं, कोडिंग तो है नहीं, एरर। 37 पर क्लिक किया तो पहले दिखा देते थे ये रेंज के अंदर एक एक लूप को चला के 50 है सेकेंड। ओके, according to that range na, it will value can implement the means display that corresponding value। हमने जो लिखा है इसके अंदर एक एक वैल्यू को गेट करके वो वैल्यू 60 से ज्यादा है फर्स्ट डिवीजन, 45 से ज्यादा है 12 तो सेकंड डिवीजन, और नीचे चेंज नहीं किया। यही तो होता है कॉपी पेस्ट के अंदर। ये थर्ड, अगर वो वैल्यू कम है 45 से तब क्या करेगा वो, का करस्पॉन्ड। अभी तक मैं सेव नहीं किया ना, वर्कबुक 1 नया वर्कबुक खोला मैंने भी, पहले स्टूडेंट के अंदर काम करता था, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ और समय समाप्त होने वाले। मेरे कहने का मतलब देखिए, अब देखिए इसमें क्लिक किया, थर्ड डिवीजन आ गया, 50 में सेकेंड डिवीजन। अगर 90 में क्लिक करता हूँ रेंज के अंदर, ओके, सो फर्स्ट डिवीजन। इसी तरह क्या हम विजुअल बेसिक पर जाने के बाद अगर सपोज किसी भी सीट पर फर्स्ट टाइम डबल क्लिक किया तो इस तरह जनरल दिखाई देगा, लेकिन पर क्लिक करके वर्कशीट इवेंट को इंप्लीमेंट करने, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट द वर्कशीट इवेंट्स देन सिंपली क्लिक ऑन दिस सिलेक्शन टैब। इवेंट तरफ से जो सिलेक्शन टैब मींस ऑब्जेक्ट जैसे है ना, उसको सेलेक्ट करिए। ऑब्जेक्ट इवेंट मतलब सिलेक्शन टैब में से ऑब्जेक्ट में से क्या जनरल को हटा के आप अगर वर्कशीट पर क्लिक करके आए तो वर्कशीट, अगर मान लीजिए प्लीज लुक एट हियर, आई वांट डबल क्लिक, आई एम अप्लाइंग द डबल क्लिक ऑन दिस वर्कबुक, मैं दिस वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करके आया हूं मैं इधर। सो दिस वर्कबुक के ऊपर डबल क्लिक करके इधर आने का मतलब क्या हुआ, जनरल तो बाय डिफॉल्ट शीट में भी वर्कबुक में भी, लेकिन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टैब के अंदर जाके क्लिक करते समय पर वर्कबुक दिखा दिया। पहले क्या दिखाया था, वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट के ऊपर डबल क्लिक करके बिफोर दिस वर्कबुक it can show the worksheet। why it can show the worksheet, we are double click on the worksheet, worksheet को ऊपर sheet 1 sheet 2 कोई भी सीट में से हम डबल क्लिक करके आगे बढ़ने से ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर वर्कशीट को पहचान सकते हैं। वर्कबुक पर डबल क्लिक करके है तो फिर इस ऑब्जेक्ट में से वर्कशीट को नहीं देख सकते वर्कबुक। फिर वर्कबुक में क्या है, ओपन। सपोज if you want to open anyway anytime, so it can display a message। so सपोज देखिए MSG BOX मैसेज बॉक्स, गुड मॉर्निंग। सपोज आफ्टर सपोज देयर इज नो रूल ना, सब एवरी टाइम यू आर ओपनिंग द मॉर्निंग ओनली, ओके, सो वेलकम लिख देते हैं।
welcome to VBA and who are open events workbook. अभी सेव नहीं किया भाई, हम सेव करेंगे. Okay, I want to show one thing. Workbook event. When I open this workbook, immediately this message will be displayed. I want to save. अभी तक सेव नहीं किया हमने. वर्कबुक 1 नाम से था. अभी देखिए नाम इवेंट्स दे रहा है, ठीक है ना, इवेंट्स. फिर इसमें जाके वर्कबुक कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप को ऊपर, देन सेव. ओके, so first of all I want to go to the MS Excel events. I open new one. I think it is display here. वर्कबुक 2 को मैंने ओपन किया है. अब मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्कबुक इवेंट्स को क्लोज करना चाहता हूँ मैं. वर्कबुक इवेंट इज क्लोज्ड, प्लीज इस विंडो को भी क्लोज कर दो. दिस इज वर्कबुक 2 का है कोडिंग विंडो. तो व्हाट आई एम टेलिंग हियर, अभी वर्कबुक इवेंट तो है नहीं. प्लीज ऑब्जर्व, at present there is no event workbook. I already closed, forcefully I closed and opened a new workbook that is called as workbook 2. If I want to open this event, suppose अब मैं इस event workbook को ओपन करने के लिए कोशिश करता हूँ. देखिए, वेलकम टू VBA, you are opened the events workbook. ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले किया है. So this is called as workbook event. So whenever I will try to open this workbook events workbook, after opening this book, immediately it will be displayed. जैसे फॉर्म इनिशियलाइजेशन के अंदर जो फॉर्म इनिशियलाइजेशन इवेंट के लिए हम कोडिंग लिखते समय पर जब भी इस फॉर्म को हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब बैकएंड में सारे कोडिंग इंप्लीमेंट करते थे. इसी तरह जब भी हम इस इवेंट बुक वर्कबुक को कोई भी वर्कबुक ओपन करते समय पर ओपन वर्कबुक ओपन इवेंट के अंदर जो भी लिखते हो आप, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं ये, ठीक है. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर अचीव्ड आवर टाइम. हम अपना समय समाप्त हो गया है. मैं और जल्दीबाजी में समझा के फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं. एंड द लास्ट मोमेंट आई डोंट टच टू न्यू वन बिकॉज वी आर रीच टू आवर एंड ऑफ द टाइम. हम अपना समय संपूर्ण तरफ से समाप्त किया है. तो जो बचा हुआ चीज I can display means remaining things, remaining tasks we can discuss in the next class, that is called as the last class, that is on tomorrow means Saturday. कल का क्लास में जो बचे हुआ चीजों का बारे में मैं समझाने के बाद वर्कबुक प्रोटेक्शन का बारे में क्लियरली थोड़ा रह गया है. वर्कबुक इवेंट्स के अंदर कुछ चीजें तो वो भी देखते हैं हम. फिर साथ साथ वर्कशीट के अंदर भी कुछ मेथड्स रह गया, मतलब जो 1-2 पॉइंट्स. सो एज ए टीचर, सो वो चीज कल का क्लास में समझाने के बाद VBA को भी क्लोज करना चाहता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग टुडे क्लास. मैं सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद बताना चाहता हूँ जिन्होंने आज का क्लास में ज्वाइन किया है. थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू.